آپ کو لے چلیں گے ملتان. اس وقت وفاقی وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. صاحب عنقریب دیں گے جو اس بات کو آگے لے کر بڑھے، کیونکہ اس نوعیت کے کچھ پرائیویٹ ممبر بل اور بھی پڑے ہیں، ان سب کو کلب کر دیا جائے گا اور کلب کرنے کے بعد اس پر پیش رفت کے امکانات روشن ہیں. اب اس میں جو ہماری خواہش ہے، اور پہلے تو عرض کر دوں کہ ہم آئین کی کن آرٹیکلز کی ترمیم کی درخواست کر رہے ہیں. جو ہم نے یہ بل موو کیا ہے، تحریک انصاف نے جو بل موو کیا ہے، اس بل سے آئین کی آرٹیکل 1، آرٹیکل 51، آرٹیکل 59، آرٹیکل 106، آرٹیکل 198 اور آرٹیکل 218، یہ وہ آئین کے آرٹیکل ہیں جن میں ترمیم درکار ہے، اور یہ ترمیم ہمیں کرنی ہوگی تب جنوبی پنجاب کا صوبہ ایک حقیقی روپ دھارے گا. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ پہلا قدم تھا اس کو منشور کا حصہ بنانا، دوسرا قدم تھا بل کو انٹروڈیوس کرانا، جو کہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں انٹروڈیوس کروا دیا ہے. اب آرٹیکل 1 کی جو ہم ترمیم درخواست کر رہے ہیں، اس میں آرٹیکل 1 کے کلاز 2 پیراگراف A میں ترمیم درکار ہے، اور اس میں ساؤتھ پنجاب کا ورڈ انسرٹ کیا جائے گا. پنجاب کے بعد ساؤتھ پنجاب کا ورڈ انسرٹ کیا جائے گا، اور پھر اسی میں تشریح کر دی جائے گی کہ ساؤتھ پنجاب سے مراد کیا ہے، ٹیریٹریز کون سی ہوں گی جو ساؤتھ پنجاب کا حصہ بنیں گی. تو اس میں اسی بل میں وضاحت کی گئی ہے کہ ساؤتھ پنجاب محیط ہوگا ملتان ڈویژن کے اضلاع، بہاولپور ڈویژن کے اضلاع اور دیرہ غازی خان ڈویژن کے اضلاع پر، جو کہ ہمارے منشور کا حصہ تھا اس کے عین مطابق. یہ ہے آرٹیکل 1 کی ترمیم. آرٹیکل 51 کی ترمیم. آرٹیکل 51 کی ترمیم میں درکار ہے ایک علیحدہ اسمبلی کا وجود. اگر ایک صوبہ بنے گا تو اس کی اپنی اسمبلی ہوگی، اور آرٹیکل 59، آرٹیکل 59 میں بھی سبسٹیٹیوشن درکار ہے، اور اس کے پیراگراف F میں بھی ایک ترمیم درکار ہے، جس میں لفظ 4 کے بجائے 5، کیونکہ 4 اکائی ہے نا، 4 کے بجائے 5 مطلوب ہے. اور جو آرٹیکل 51 ہے اس کی ترمیم سے جب ایک علیحدہ صوبہ انشاءاللہ معرض وجود میں آئے گا تو پھر جنوبی پنجاب کو سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی، اور وہ پھر سیٹیں بھی ہمیں درکار ہوں گی سینٹ میں. تو وہ سیٹیں ان کا بٹوارہ کیسا ہوگا، تو یہ اس میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں ہیں اس میں اضافہ کیسے ہوگا. اب آرٹیکل 106، آرٹیکل 106 جو ہے، یہ جب ایک نیا صوبہ بنے گا تو یقیناً جو موجودہ پنجاب ہے وہ بائیفرکیٹ ہوگا 2 صوبوں میں، تو جو آبادی کی بنیاد پر سیٹیں ہیں وہ بھی تقسیم ہوں گی. تو اس میں جو شکل بنے گی اس میں یہ بنے گا کہ پھر جنوبی پنجاب کی جو انشاءاللہ اسمبلی معرض وجود میں آئے گی اس کی کل سیٹیں ہوں گی 120، جس میں 95 ڈائریکٹ الیکٹڈ ہوں گی، 22 انڈائریکٹ ہوں گی، خواتین کی ہوں گی، اور پھر 3 اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں. تو کل سیٹیں
जनूबी पंजाब की बन जाएंगी 120 और पंजाब की सीटें जो हैं वो यकीनन जब कम होंगी तो वो रह जाएंगी 251। मतलब है जो अपर पंजाब होगा, जिसको आप पंजाब कहते हैं पर नहीं पंजाब कहेंगे, तो उनकी सीटें हो जाएंगी 251 और जनूबी पंजाब की सीटें हो जाएंगी 120। इसके बाद आर्टिकल 198, आर्टिकल 198 से तरमीम से जनूबी पंजाब के लिए एक अलहदा हाई कोर्ट की तश्कील मतलूब है। जनूबी पंजाब का अलहदा हाई कोर्ट होगा, उसका अपना चीफ जस्टिस होगा और उसकी प्रिंसिपल सीट जो है वो मुल्तान होगी। और इसी में ये गुंजाइश भी रखी है कि ईच ऑफ द हाई कोर्ट्स मे हैव बेंचेस at such other places as the governor may determine। जैसे बेंचेस है ना पहले, तो जैसे हमारा जनूबी पंजाब में बहावलपुर बेंच है तो वो बहावलपुर बेंच भी बरकरार रहेगा और वो हाई कोर्ट मुल्तान का हिस्सा हो जाएगा। तो एक सेनेट की सीटें, अलहदा असेंबली की सीटों की तादाद आबादी की बेस पर, अलहदा हाई कोर्ट की तश्कील जनूबी पंजाब की, और इसके बाद आर्टिकल 218 की तरमीम। आर्टिकल 218 का क्लॉज 2 पैरा बी में तरमीम दरकार है, जिसने कुल पाकिस्तान के सूबों का तयन है कि 4 होंगे, तो वो 4 की बजाय 5 हो जाएगा। इसके साथ साथ इस बिल में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी दिए गए हैं कि ये जो हम कर रहे हैं इसकी खातिर मतलूब क्यों है, इसके फवायद क्या होंगे और इसकी जरूरत क्या है। तो ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी उसके बिल में शामिल किए गए हैं। स्पेशल कमेटी का मैं पहले तस्करा कर चुका हूं, इसमें मैं अर्ज करता चलूं क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए और तहरीक इंसाफ के पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो इसके लिए हमें दीगर जमातों का तावन दरकार है। चुनाचे मैंने इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट जो सीनियर हैं उनसे राब्ता भी किया है और उनसे एक नशिस्त और तबादला ख्याल भी हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने इसलिए किया है कि पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ रहा है जनूबी पंजाब का, तो मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि आपका भी ये मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है, आप भी कोशिश कर रही हैं और आप भी ना करवा सके अपने वक्त में क्योंकि आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, हम भी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो आइए मिलकर इसको आगे लेकर चलें क्योंकि हमारा मकसद एक है। तो उस पर मैं ये बरमला कहना चाहूँगा, मुझे जो उनका इनिशियल जवाब आया वो मुस्बत था, पॉजिटिव था और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह अगले इजलास में सैयद खुर्शीद शाह साहब, सैयद नवीद कमर साहब और राजा परवेज अशरफ साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असेंबली में, इनसे इस मौजू पर इसको आगे बढ़ाने के लिए मजीद नशिस्त भी होगी और तबादला ख्याल भी होगा। नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई ने यह भी फैसला किया है कि असेंबली में और सेनेट में और जमातें जो इस सोच से मुताबिकत रखती हैं और हैं, मेरे इल्म में है, उनसे भी राब्ता किया जाएगा और उन्हें भी कायल किया जाएगा कि इसके बनने से वफाक पाकिस्तान किस तरह मजबूत होता है। और हमारी एक फेडरेशन है और हमारा मौक़िफ़ ये है कि इससे फेडरेशन मजबूत होती है ना कि कमज़ोर। तो उनसे भी पॉलिटिकल डायलॉग का
फैसला किया गया है और इंशाल्लाह उस डायलॉग को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हम उस कंसेंसस की तरफ और उस मेजॉरिटी की तरफ बढ़े जो हमें दरकार है सेनेट पे और कौमी असेंबली में, विच इज 2/3, जो न एन के पास तनहा है, न पीटीआई के पास है, न पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन इन प्रिंसिपल सभी कहते हैं कि अच्छी पेशरफ्त है, अच्छी जरूरत है। तो सब अगर एक चीज को अच्छा समझते हैं तो फिर हम कह रहे हैं कि हमने ये काविश की है, आइए इस नेकी में शामिल हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि किसी एक को इसका सेहरा मिले, ये सबका सेहरा हो। मैं ये नहीं कहता हमको तंग नजरी हमारी ना सोच है ना हम तंग नजर हैं, तो हम ये सेहरा सबके सर डालना चाहते हैं। अब मेरी आखिरी गुजारिश है पीएमएलएन के दोस्तों से। पीएमएलएन के दोस्तों में भी मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत सा तबका ऐसा है जो जनूबी पंजाब के हक में सोच रखता है, लेकिन कुछ दोस्त हैं वो अपने पेश करदा माजी के बिल के उस कैद में वो फंसे हुए हैं। तो मेरी पीएमएलएन से भी दरखास्त होगी, उनसे भी बात करेंगे, मंतकी बात करेंगे कि आप भी अपनी फैसले पर नजरसानी फरमाएं और जनूबी पंजाब को बनने दें। उसकी लॉजिक ये है, हमें आपकी सोच पे कोई मतलब है, हम कोई उसमें रुकावट नहीं बनना चाहते, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें। आप सब पढ़े लिखे जी शऊर लोग हैं। 3 जिलों का सूबा मुमकिन नहीं है। अगर आप 3 जिलों का सूबे का मुतालबा करेंगे, उसके लिए अलहदा असेंबली का तकाजा करेंगे, अलहदा सेनेट की सीटें, क्योंकि सेनेट में बराबरी होती है, तो वो बात सिरे चढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। तो मंतकी बात यह है कि आप जनूबी पंजाब, जो कि आज की नहीं कई दहाइयों की इसकी एक मुतालबा है और एक काविश कोशिश है, उसको परवान चढ़ाने में हमारी मदद फरमाएं। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर अपने रवैये पर नजरसानी फरमाएंगे। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन सब हजरात का इस बिल के बनाने में जिन्होंने मदद फरमाई। मुझे याद है कि रोजे के बाद, अफ्तारी के बाद रात देर तक इस भी हम बारीकी से इसको स्टडी करते रहे, बनाते रहे, और मैं खुद इसमें बैठा रहा। तो इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने वजीर कानून का, फ़ारूक नसीम साहब का, कि जिनसे हमने रहनुमाई हासिल की, क्योंकि वो आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुसरो बख्तियार साहब का, हमारे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हैं, जिन्होंने अपनी आरा इस पे शामिल की। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नसरुल्लाह खान रिशक साहब का, जिन्होंने भी इनपुट दिया। उन्होंने लाहौर में कुछ वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से बातचीत हुई है।